اپنے بندے اکرم کو مکمل صحت عطا کرے اور اپنے فضل کے سائے میں رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے پاک نماز کی قربانی ہم سب کے لیے گزرانی جائے گی، خاص طور پر دنیا کی جتنی بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، سب کے لیے امام قصہ کے مشن کو پہچانتے ہوئے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو قربانی۔ آج کی اس کے ساتھ ساتھ آج میری بھتیجی کی جو ہمارے خاندان کی پہلی اولاد ہے، اس کی آج سالگرہ بھی ہے، تو آج کی پاک نماز کی قربانی کرنے کے لیے میدہ کے لیے آج ایک نیو بورن بیبی بھی آیا ہے، ان کے لیے خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خداوند میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج 8 دسمبر قیصر کلیسیا مقدسہ ماں مریم کی بے داغ حمل میں لیے جانے کی عید بڑی شادمانی کے ساتھ مناتی ہے، اور یہ عید تمام ایمانداروں پر واضح کرتی ہے کہ مقدسہ ماں مریم جب اپنی ماں حنا کے پیٹ میں حمل میں لی گئی تو اسی لمحے وہ خدائے قادر کی پاک مرضی کے مطابق بے داغ اور منحوس کی گناہ سے پاک ٹھہری۔ اگرچہ یہ عید آمد کے موسم میں آتی ہے، یہ ہمارے نجات دہندہ کی پیدائش کی تیاری کا لطوریائی موسم ہے۔ آج کی عید کی طلعتیں ہم پر افشا کرتی ہیں کہ خدا نے مقدسہ مریم کو نئی ہوا بننے کے لیے چن لیا تاکہ وہ نسل انسانی کو آدم اور ہوا کی گناہ سے نجات دلائے اور خدا کی نجات بخش منصوبے میں اس کی مامن ہو۔ آج کی انجیل مقدس میں بھی ہم سنیں گے کہ مقدسہ مریم خدا کے بلاوے پر ہاں کہتی ہے کہ دیکھ خدا کی بندی ہو، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ وہ منصوبہ نجات میں شامل ہوتی ہے۔ آئے اس عبادت کے لیے اپنے آپ انتظار کریں تاکہ ہم خاص طور پر اس مقدسہ ماں کی شفاعت اور ان فضائل کی برکت سے ہم یسوع کی محبت میں بڑھ سکیں۔ خدا آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیز اثر سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ گواہی سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے، آمین۔ سارے گناہوں سے یسوع ربنا ہمیں سارے دن اپنے سلام۔ اے نہایت مہربان خدا، تیری اصلی تقدیر سے تیرا کلمہ انسان بن کر موت سہنے کو تھا، اسی تقدیر کے مطابق اور اسی موت کے ذریعے وہ
मुकद्दसा मरियम की फितरत गुनाह के और दाग से बरी होकर हस्ती में आई ताकि तेरे बेटे के लिए एक लायक मस्कन हो। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, बख्श दे कि हम उसकी मादराना सिफारिशों की बदौलत पाक होकर तेरे पास आ सके। मसीह खुदा के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तेरी नस्ल और औरत की नस्ल। हमारे लिए आज की पहली तिलावत तकवीर की किताब 3 बाब नाविता 15वीं फिर 20वीं आयत तक। एक दिन खुदा ने आदमी को पुकारा और उसे कहा, तू कहाँ है? वो बोला, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छुप गया। उसने उससे कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि इसे ना खाना? आदमी ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ कर दिया उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने क्या किया? औरत बोली कि सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। तब खुदा ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया, मालूम है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी जिंदगी के तमाम अयाम तू खाक चखेगा। मैं तेरी और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत।
उसका पहला बाब 3 आयत से 6 फिर 11 आयत से 12 आयत था। ऐ भाइयों, हमारे खुदा यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जिसने हमको मसीह में हर तरह की आसमानी बरकत रूहानी से बरकत बख्शी है। उसी ने हमको बनाए आलम से पेशतर उस पे चुना ताकि हम उसकी निगाह में मोहब्बत में पाक और बेआब हों। उसी ने अपनी मर्जी के नेक इरादों के मुवाफिक यीशु मसीह में महब्बती होने के लिए हमें पेशतर से मुकर्रर किया है, ताकि उसके उस जलाली फजल की तारीफ हो जो उसने हमें अल महबूब में अता फरमाया। उसी में हम भी उसके इरादे के मुवाफिक जो अपनी मर्जी की मुसल्लत से सब कुछ करता है पेशतर मुकर्रर हुए, ताकि हम जो पहले मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सताइश की बाइश बने। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसका 1 बाब 26 से 38 आयत तक। और छठे महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कमारी के पास। उस कमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम है पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक फजल पाया है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा।
तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूं? और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुदुस तुझ पर नाजिल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कुदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार इस बात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाए। ऐ खुदा, तुम्हारे दिल की तारीकी को दूर कर दे, हमें कामिल यकीन व पुख्ता ईमान अता कर, ताकि हम मुकद्दसा की तरह तेरे बुलावे को पहचानें। मसीह खुदा मेरे अजीज भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आप सबको मुकद्दसा मरियम का की बेदाग अमल में लिए जाने की ईद मुबारक। मेरे अजीजों, ये पापा कलीसिया में अव्वल दर्जे की ईद है। वैसी ही बड़ी ईद जैसे हम क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस अव्वल दर्जे की ईद है। ईस्टर मनाते हैं, अव्वल दर्जे की ईद है। और इसी तरह आज की ईद भी जो है वो अव्वल दर्जे की ईद है। क्योंकि अगर आप लिथुर्जिया कैलेंडर को देखते हैं तो उसमें जब ईदों का जिक्र आता है तो एक तो अव्वल दर्जे से सोलेमनिटी कहते हैं, फिर फीस्ट होती है, ईद होती है, और फिर यादगार होती है, फिर मेमोरियल जिसे कहते हैं यादगार बनाते हैं। जिस तरह पर ईमानदारों की यादगार बनाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आज जब हम इस ईद को मनाते हैं तो खुदा अपने कलाम के जरिए हम पर आश्कारा करता है कि मुकद्दसा मरियम की हस्ती वो हस्ती है जिसे खुदा ने इब्तिदा ही से अपने जहन में बना लिया था, जिसे जिस्म आज के दिन मिलता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम मुकद्दसा मरियम की बात करते हैं तो खुदा उसे अपनी वालिदा बनाना चाहता है। जब वो उसे अपनी वालिदा बनाना चाहता है उसके जरिए, तो फिर उसे इब्तिदा ही से उसने अपने निजात के लिए बना दिया। जिस तरह आज की पहली तिलावत हमने सुना, पहली तिलावत में खुदा ने आदम और हवा को बनाया, और आदम और हवा की जिंदगी ने उन्हें बनाने के बाद, बड़ी मोहब्बत से सेंचने के बाद उसे बाग-ए-अदन में रखा। और जब बाग-ए-अदन में रखा तो उनसे गुनाह हुआ, और लिखा है कि खुदा हर रोज शाम को उनसे मिलने के लिए आता है। और इस शाम को जब वो मिलने के लिए आया तो क्या हुआ? उन्होंने कहा, आवाज आई, आदम आदम कहाँ हो? उसने कहा, खुदा सामने नहीं आ सकते क्योंकि हम नंगे हैं। नंगे होने का मुराद ये नहीं कि उनके जिस्म में कपड़े नहीं है, क्योंकि जब भी इंसान कुछ खता करता है तो वो छुपता है। जब वो खुदा की मोहब्बत को ठुकराया, उन्होंने खुदा की रहमतों को ठुकरा दिया, तो वो छुप गए। तो फिर खुदा ने कहा कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने वो फल तो नहीं खा लिया? तो फिर आदम क्या कहता है?
जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे दिया और मैंने खा लिया। जब औरत से पूछा गया तो वो क्या कहती है? शैतान ने मुझे बहकाया और मैंने। और यहां खुदावंद फिर आदम और हवा से मुखातिब नहीं है, वो शैतान से कहता है कि मैं, क्योंकि तूने ये किया है, अब तू पेट के बल चलेगा, रींगेगा और मिट्टी चाटेगा। और फिर उससे कहा गया, क्या कहा गया था? इंसान के नहीं, औरत के। एक औरत से जिससे गुनाह हुआ, एक तरफ उससे जब गुनाह हुआ तो खुदा उसे, लेकिन क्योंकि शैतान ने औरत को बहकाया तो खुदा ने शैतान से ये कहा कि क्योंकि तूने औरत, अब तू औरत ही तुझसे बदला लेगी, तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा और वो अपनी एड़ी से तेरे सर को कुचलेगी। और उसी लम्हे खुदा ने निजात दहिंदा का वादा भी कर लिया और निजात दहिंदा को भेजने का मंसूबा बनाने के साथ साथ उस हस्ती को भी भेज दिया जिसके वसीले से निजात दहिंदा इस दुनिया में आएगा। खुदा ने कहा कि मैं तेरे और औरत की नस्ल, दुनिया में नस्ल किससे चलती है? किससे? औरत से चलती है, बाप से चलती है, बाप से चलती है। हमारे नाम के साथ बाप का नाम लगता है कि नहीं लगता? अम्मी का तो नहीं लगता ना। लेकिन खुदा इसे क्या कह रहा है कि मैं तेरी और औरत की नस्ल, मतलब, और एक ही हस्ती है जिसको इब्ने मरियम कहा गया। कुरान में भी इसका जिक्र आता है, इब्ने मरियम से कहा गया। और वो इब्ने मरियम जो औरत से उसकी नस्ल है, याद किया जाता है इब्ने मरियम क्या? इब्ने मरियम इब्ने बैतलहम में पैदा हुआ, गीत गाते हैं ना। और फिर इसी से खुदा अपने वादों का सच्चा है। इसलिए आज की जो दूसरी तलावत है बहुत खूबसूरत तलावत है, और वो कौन सी है? शाबाश, आज क्या सुना दूसरी तलावत में? सुना भी है कि नहीं सुना? आज की दूसरी तलावत में पौलुस रसूल इफ्सियों के नाम खत में कहते हैं, ऐ भाइयों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जिसने हमको मसीह की तरह की आसमानी बरकत रूहानी से बरकत बख्शी। उसी ने हमको बनाए आलम से, मतलब आलम के बनाए जाने से पहले से ही मुकर्रर किया। अब देखें, मुकद्दसा मरियम को आलम के बनाए जाने से पहले ही मुकर्रर कर दिया गया था, क्योंकि खुदा जानता था कि इंसान को तो मैंने बना दिया और इंसान खता भी, क्योंकि खुदा तो सब कुछ जानने वाला होता है। बनाए आलम से उसे चुन लिया, और फिर जब मुकद्दसा मरियम से यह सवाल किया गया, आज के इंजील मुकद्दस में फरिश्ता उसके पास आया, सलाम है मरियम कुल फजल खुदावंद तेरे साथ। सलाम किसकी तरफ से है? किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से है, जो फरिश्ता लेकर आया, और उसका नाम मरियम, और वो कुल फजल है। और मुकद्दसा मरियम जो है वो क्या करती है? ये कैसे मुमकिन? देखिए, अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो खुदा ने बहुत सारे मौजूदात किए ऐसे, बुढ़ापे में, कमजोरी में,
देखिए सबसे बड़ी बात, जो इंसान का बनाया जाना, मिट्टी से, खाक से, नेस्ती से पैदा किया गया, और फिर खुदा देखिए रूह को चुनता है, बुढ़ापे में उसके खानदान को चुन लेता है और उससे सख्त मेहनत लेता है, कश्ती बना, बड़ी सारे जानवर जोड़े रखते हैं, दो जोड़े रखते हैं जैसे भी, और वो ये खुदा का काम अंजाम है। खुदा ने हमेशा कमजोरों को चुना, ये याद रखें। खुदा ने ताकतवरों को कभी नहीं चुना है। खुदा ने हमेशा कमजोरों को चुना ताकि अपना जलाल जाए। फिर एक वीरान बुढ़ापे में, फिर उनसे उनके दरमियान जब फरिश्ते भेजे और उनसे वादा किया कि तुम्हें औलाद अता करूंगा, तो साराई हंसती है। इब्राहिम भी कहते हैं ये कैसे मुमकिन है। शक आता है उनके दिल में कि ये कैसे। फिर उसके बाद अगर देखें जकरिया का किस्सा, इस बात का, जकरिया जब बहूर खुशबुएं चढ़ा रहा था, तो वहां पर जब फरिश्ता उसके पास आया तो उसने शक किया, और जहां जिन ने शक किया वो उनके मुंह बंद कर दिए, खामोश, कि जब तक मुआजिजा ना हो जाए तेरी जुबान नहीं खुली। और मुकद्दसा मरियम पहले सवाल करती है कि ये कैसे मुमकिन है, शक नहीं कर रही, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये खुदा की तरफ से है, रूह कुदूस तुझ पर नाज़िल होगा, हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, तो वो क्या कहती है, बस मेरे लिए तेरे कॉल के। ये फर्क है। मुकद्दसा मरियम शक नहीं करती, मुकद्दसा मरियम कबूल कर लेती। जब उसे पता चल जाता है कि ये खुदा की तरफ से है तो उसे कबूल कर लेती है और हाँ कह देती है। मेरे चीजों मुकद्दसा मरियम बड़े अच्छे तरीके से जानती थी कि वो बुलाई गई है, वो चुनीदा है। और दूसरी जो अहम बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि मुकद्दसा मरियम को खुदा ने अज़ल से चुना, और मुकद्दसा मरियम मौरूसी गुनाह के बगैर पैदा हुई है। उसकी वालिदा हन्ना और योयाकीम बुढ़ापे में, मुकद्दसा मरियम बुढ़ापे की औलाद है, और वो खुदा ने उसे बेदाग उसकी मां के बटन में डाला। कि मेरे जिसको जहां जिसके जरिए खुदा ने इस दुनिया में आना है, तो खुदा अपने रास्ते हमेशा साफ रखता है, खुदा अपने मस्कन साफ रखता है। ये इंसान ही है जो अपने मस्कनों को गुनाह आलूदा करता है, गलाजत से भर के रखता है, पर खुदा अपने मस्कनों को पाक रखता है। इसलिए उसने जो मस्कन चुना है, जिस पर उसने आकर ठहरना है, जिसके जरिए इस दुनिया में उसने आना है, तो उसे पाक और पवित्र रखना है, जो मौरूसी गुनाह से भी पाक है। हम सब मौरूसी गुनाह में पैदा होते हैं। बपतिस्मा के वक्त में हम पर दुआ की जाती है, मौरूसी गुनाह से पाक किए जाते हैं। लेकिन मुकद्दसा मरियम क्योंकि बनाए आलम से चुनी गई थी, बनाए आलम से ही खुदा ने उसे चुन लिया था, इसलिए खुदा उसे मौरूसी गुनाह से पाक रखता है। इसमें बुलावे की बात है। पौलुस कहता है कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब हमारा इस दुनिया में कोई तसव्वुर भी नहीं था, हमें खुदा ने बनाए आलम से ही चुन लिया था। सब मरियम को बनाए आलम से चुना, इसी तरह हम सब भी बनाए आलम से चुने गए। हम सब ने
عہد کو یاد رکھنا ہے کہ ہم سب بلائے ہوئے ہیں، چنیدہ لوگ ہیں۔ اور چنے ہوئے لوگ جو ہے وہ کس کی سنتے ہیں؟ اپنے خدا کی سنتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، جو خدا کی سنتے ہیں، جنہیں خدا نے چن لیا ہے بنائے عالم سے، وہ ہے ان پر کیا ہوا ہے؟ آسمانی برکات روحانی جو ہے نا انہیں بخشی گئی۔ آسمانی برکات روحانی انہیں بخشی گئی ہے، وہ برکت بخشی گئی ہے۔ اور وہ برکت کیا ہے؟ کہ خدا کی سننے والے لوگ، خدا میں چلنے والے لوگ، خدا کی آواز میں تیار رہنے والے لوگ۔ اور دیکھیں میرے عزیزو، ہم سب مبارک لوگ ہیں، چنیدہ لوگ ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے بلاوے کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں۔ پولوس کہتا ہے نا کہ اب تم اس دنیا کے نہیں، اب تم بشری نہیں بلکہ کیا ہو؟ روحانی ہو۔ اور وہ ماضی کا سفر کیا ہے؟ کہ ہم پھر سے گناہ کی طرف لوٹتے ہیں، گناہ میں گرتے ہیں۔ دیکھیں خدا نے انہیں بنایا، عالم سے بنایا، عزت دی، مقام بخشا، لیکن گناہ کیا۔ اور گناہ کیا ہے؟ گناہ تو کیا ہے، لیکن گناہ کے ساتھ کیا ہے؟ اقرار نہیں ہے، مننا نہیں کہ گناہ کیتا ہے۔ آدم سے پوچھا گیا تو آدم کہتا ہے کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے۔ جب ہوا سے پوچھا گیا تو ہوا کہتے نہیں، شیطان نے مجھے بہکایا اور میں نے کھایا۔ آج بھی ساڈے رویے انجدی ہوتے ہیں، جاتی کر پڑے نہیں جاندے، وہ تو کسی چور نہیں، ہمیں جنی چور جانا۔ پھر جدو پڑے جانا تو کہنا نہیں انہیں کیا وہ دی وجہ میں چوری، انہوں پڑھنا تو کہنا نہیں وہ تو فلانے نے میرے کیا۔ اور جدو اگلے پڑھے گئے تو جو شیطان نے میرے بہکایا تھا۔ ہم ذمہ داری نہیں لینا چاہتے۔ مقدسہ مریم ہمیں ذمہ داری لینا سکھاتی ہے۔ دیکھو مقدسہ مریم کسی خوف میں نہیں ہے، خوف سے آزاد ہے۔ اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے کہ میری بےزتی ہو جائے گی، میں تے کماری ہوں۔ لیکن جب خدا کی باری آتی ہے تو پھر اس نے پوری ذمہ داری لے لی۔ اسی طرح میرے عزیزو، پولوس مجھے اور آپ سے بھی کہتا ہے کہ ہم سب بنائے عالم سے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ خدا نے ہمیں پہلے سے ہی چن لیا ہے، لیکن اب ہم نے ثابت قدم رہنا مقدسہ مریم کی طرح۔ مقدسہ مریم دیکھیں پیدائش سے لے کر صلیب تک یسوع کے ساتھ ہے، پیچھے نہیں ہٹی، چھپی نہیں ہے، ڈری نہیں ہے، خوف نہیں کھایا، لیکن کیا کیا؟ ساتھ اس لیے میرے عزیزو، پاک کلیسیا بھی ہمیں بارہا یاد دلاتی ہے کہ ہم چنیدہ لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ۔ خدا نے ہمیں چن لیا ہے، اور اب سے نہیں، ہماری پیدائش سے پہلے ہم چنے ہوئے، ورنہ ہمیں کسی اور کے گھر میں بھی پیدا کیا جا سکتا تھا۔ ہاں، کسی اور جگہ پیدا ہو سکتے تھے۔ کیوں ایک مسیحی کے گھر میں، کیوں ایک کیتھولک کے گھر میں پیدا کیا؟ کیونکہ یہ خدا کا انتخاب تھا۔ خدا نے آپ کو بنایا، عالم سے چنا ہے، اس کے پاس آتے ہیں۔ دیکھیں خدا نے مقدسہ مریم کو چنا اور خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا۔ پہلے اس کے سلام سے گھبرا گئی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اچانک سے کوئی فرشتہ آ جائے کہ سلام اور فضل خداوند تیرے ساتھ۔ سلام عجیب ہے، اور وہ سلام قبول کرنا۔ اور پھر میرے سو مقدسہ مریم کیا بن جاتی ہے ہمارے لیے؟ ایک مثال ہے، پہلی شاگردہ ہے، اور وہ نجات کا دروازہ۔
मुकद्दसा मरियम नजात का मतलब उसके जरिए नजात दहिंदा हमारे पास आता है। हम यीशु को कबूल करते हैं, हम मां मरियम की तरह यीशु को कबूल करते हैं और फिर उसे दूसरों के पास लेके जाते हैं, दूसरों से यीशु को मुतारिफ कराते हैं। मेरी जिंदगी से यीशु जब दूसरों को मिलता है तो निजात आगे बढ़ती है, निजात दहिंदा दूसरों तक पहुंचता है। इसलिए मेरे शिष्यों, खुदा पर भरोसा रखने से कामिल यकीन रखें, मुकद्दसा मरियम की खौफ अपनी जिंदगी से निकाल दे, कामिल भरोसा उस पर रखें और उसके साथ चलने से। बहुत सारे लोग सामने कहते हैं मरियम की पूजते नहीं, कलीसिया कभी नहीं समझ सकता ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ मां ਦੇ ਨਾਲ मां खुदा ਦੀ मां ਨਾਲ जुड़ना चाहते हैं, हम उससे सीखते हैं, हम उसके साथ साथ चलना चाहते हैं। देखिए, फरिश्ते के पैगाम लाने से पहले फरिश्ते के पैगाम लाने, फिर उसकी यीशु की पैदाइश से लेकर यीशु की 30 साल खामोश जिंदगी जो नासरत में वो कोई और नहीं जानता है, यूसुफ और मां मरियम ही जानते हैं, बस यूसुफ और मां मरियम कि नहीं। तो फिर अगर हमने यीशु को जानना है तो मां मरियम को जानना जरूरी है। तो अगर हम कहें कि हमने मां मरियम को नहीं जानना, कैसे यीशु को जाने? यीशु की जो खुफिया जिंदगी है उसको कौन जानता है? जो जानता है वो मां ही जानती है। बहुत सारे जो लोग कहते हैं तो ये जो कलाम है पहुंचता है, जो वाकयात मुकद्दसा मरियम के हुए जो कलाम में लिखे गए तो किसने बताए होंगे? किसने दसे ऐसे शागिर्दार? मरियम ने। उसकी अहमियत कभी कम नहीं हो सकती। इसलिए मेरे से पाक कलीसिया हमें बार बार सिखाती है कि मुकद्दसा मरियम से सीखो, मुकद्दसा मरियम की तरह बढ़ो। कि अगर आप यीशु में बढ़ना है, मुकद्दसा मरियम ये नहीं कहती कि मुझ में बढ़ो, मुकद्दसा मरियम कहती है मेरे बेटे में बढ़ो, यीशु में बढ़ो। इसलिए यीशु में बढ़ना सीखें, और जब हम यीशु में बढ़ते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में मौजूदात होते हैं, हमारी जिंदगी में मौजूदात होते हैं, और यीशु हमसे कलाम होता है, यीशु हमारे साथ रहता है। इसलिए मेरे आज की ये ईद जो है वो आज एक खास पैगाम जो मैंने कि जिस तरह मुकद्दसा मरियम बनाया आदम से चुनी गई, आदम बनाने से पहले, इसी तरह आप और मैं भी चुने हुए लोग हैं, ताकि हम मसीह के हम शक्ल बन जाए, मसीह के हम कार हो जाए। जैसे कारें वो करता है, जैसे काम वो करता है, हम भी वैसे काम। इसलिए मेरे शिष्यों, आज हमने खुदा की आवाज सुनी, तो जब हम खुदा की आवाज को सुनेंगे तो खुदा हमारे साथ हो जाएगा। तो उसका नाम यीशु रखना, इसका मतलब है जात देने वाला। लेकिन यीशु के नाम में ही एक बरकत है। अगर आप सिर्फ यीशु यीशु करें तो यही आपकी दुआ बन जाती है। जब आप ये करार करते हैं कि यीशु मेरा निजात देता है,
यीशु मेरा निजात है, यीशु मेरा यीशु, ये आपकी दुआ है। यीशु को अपनाना, यीशु के साथ जिंदगी कि मुकद्दसा मरियम ने यीशु को अपनाया। जब यीशु उसने अपनाया तो उसने दुनिया को यीशु दिया, और उसके और वसीलों का तर्ज अमल दुनिया के तर्ज अमल से फर्क। मसीही ईमान के साथ चलते हैं, मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में आगे नफरत नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, फसाद नहीं करते। देखिए मुकद्दसा मरियम से आप मोहब्बत करते हैं, फिर मुकद्दसा मरियम से सीखते हैं। यीशु कहते हैं अगर तुम मुझसे प्यार करते तो क्या करो, मेरी बातों पर। तो मोहब्बत यही होती है कि जब हम जिससे प्यार करते हैं उसकी बातों पर अमल करते हैं। सिर्फ आई लव यू कहने से मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तब है जब चाहे आप आई लव यू करें या ना कहें, लेकिन जो कहा गया वो करते हैं। अच्छा अपने माँ पे उनकी ना आई लव यू करेंगे। हाँ मदर्स डे आ जाए, फादर डे आ जाए, एक फूल उड़ा के चॉकलेट उड़ा के दे आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मा करके चाचा। असल मोहब्बत ये है कि हम उनकी बातों पर अमल करते हैं। अगर आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो उनकी बातों पर अमल। अगर आप माँ मरियम से मोहब्बत करते हैं तो माँ मरियम की बातों पर अमल। यीशु से मोहब्बत है, यीशु की बातों पर। हम सब चुने हुए हैं। देखिए काइन भी, पोप साहब, बिशप साहब, कार्डिनल, हर शख्स, मास्टर साहबान, आप सब, हम सब चुने हुए हैं। ये चुने हुए लोग हैं वो अपनी जिंदगी उनकी फर्क होती है, तो अपनी फर्क जिंदगी से मसीह की गवाही करें, अपनी जिंदगी से यीशु को दूसरों तक लेके जाए। मसीह हमारे खुदा की मसीह है। सुनाई देती है, क्योंकि सदाकत का सूरज मसीह हमारा खुदावंद तुझी से तुझ हुआ। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, काश हम पाक शराकत लेकर उस गुनाह के जख्म का इलाज पाए जिससे तूने ताजुब अमेज तौर पर मुकद्दसा मरियम को उसकी हस्ती में आने से बेशतर ही बरी रखा था। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।
खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक आप सब पर नाजिल होती रहे। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो।